Hello everyone. Today we are going to study one of the most important topics of ancient Indian history, and that is the Indus Valley Civilization, also known as the Harappan Civilization. Okay, so this civilization is actually very important because it was one of the earliest and the most advanced urban civilizations of the ancient world. So, before understanding Harappan civilization, let us first see the major river valley civilizations of the world which were prevalent during, Indus Valley civilization. So, the first civilization that we have is Mesopotamian. Okay, so this civilization was in the region of Iraq and it is based on the river Tigris and Euphrates. ठीक है. Then you have Egyptian civilization, which is also pretty much as old as Harappan civilization, and Egyptian is obviously Egypt, and river associated with this civilization is Nile River. Then again you have Harappan का जो area है that is India, Pakistan and Afghanistan, which is based on river Indus. Chinese civilization, which is obviously in China, and it is based on river Huanghe. ठीक है. And yes, like I said, among them Harappan civilization was one of the most advanced urban civilizations. ठीक है. It was highly developed in terms of town planning and drainage system. Also it had trade and craft and urban lifestyle. तो ये सारी चीज़ें since prevalent थी हमारे Harappan civilization में, that is why it is referred to as one of the most highly developed. ठीक है. Now we'll be talking about the names that it is associated with. Obviously, like I said, it is called Indus Valley Civilization, Harappan Civilization. It is also called Indus Saraswati Civilization. Now, why Indus Saraswati? Because many sites were actually found along the Ghaggar Hakra river system. तो ये इस रिवर को हम एंशियंट सरस्वती रिवर से एसोसिएट करते हैं, एंड दैट इज़ वाई द नेम इन द सरस्वती सिविलाइजेशन इज ऑल्सो यूज्ड. ठीक है. एंड लेट्स कम टू अ जोग्राफिकल एक्सटेंट. सिविलाइजेशन वाज स्प्रेड अक्रॉस अ वास्ट रीजन, जिसमें आपका पाकिस्तान, इंडिया और थोड़ा बहुत अफगानिस्तान भी आता है. तो इसमें हमारा सिंध, इन पाकिस्तान वी हैव सिंध, बलूचिस्तान एंड पंजाब एरिया. In India, we have Haryana, Rajasthan, Gujarat, Western UP, Northern Maharashtra and Jammu area. Also a bit of Afghanistan. ठीक है. Most important extremes that you need to learn इसमें, since there is nothing to explain about here, so I will just tell you and go through with you कि इसमें बस क्या क्या आपको याद रखनी है चीज़ें, and कैसे कैसे आपको बस अपने points को on paper लिखना है. ठीक है. ये वाली चीज़ इंपॉर्टेंट है बिकॉज दिस विल टेल अस हाउ वास्ट आर हरप्पन साइट्स वर. तो नॉर्दर्न मोस्ट साइट वॉज मांडा इन जम्मू एंड कश्मीर, सदर्न मोस्ट वॉज दायमाबाद इन महाराष्ट्र, ईस्टर्न मोस्ट वॉज आलमगीरपुर which was in UP, वेस्टर्न मोस्ट वॉज सुतका गेंदौर इन बलूचिस्तान. ठीक है. सो दीज आर द 4 इम्पॉर्टेंट हरप्पन साइट्स जो कि एक्सट्रीम्स में हैं, जो कि आपको याद करने की ज़रूरत है. ठीक है. सो यू कैन लर्न दीज बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. एंड नेक्स्ट वील कम टू द फेजेस ऑफ द हरप्पन सिविलाइजेशन. सो लाइक हियर आई हैव सेड कि 2600 to 1900 BC तक हमारा IVC का था. तो उसमें हमारी 3 phases वर देयर. ठीक है. एक तो थी आपकी अर्ली हरप्पन, then you have mature Harappan, and then you have late Harappan. तो early Harappan का time is 2900 to 2500 BCE, mature Harappan is 2500 to 2000 BCE, and then late Harappan is your 2000 to 1700 BCE. ठीक है. तो हमारा ये वाला फेज़ आपको याद करने की ज़रूरत है. इसमें I would like to talk about 3 things here, जो कि हमारा अर्ली हरप्पन एरिया था. ठीक है. जो अर्ली हरप्पन फेज था, विच इट वॉज बेसिकली नोन एज द रीजनलाइजेशन एरा. ठीक है. इट वॉज नोन एज द रीजनलाइजेशन एरा. अब इसका मतलब क्या है? ये आपका हाकरा फेज सेटलमेंट से एसोसिएटेड था. यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या थी चीज़ें. हाकरा फेज था ये. ठीक है. ऑफ सेटलमेंट्स. लेट मी जस्ट टेल यू सम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन.
एंड yes, so here it was marked by fortifications. यहाँ पे आपके fortifications होते थे. And then you had expertise in specialized crafts. ठीक है, आपके यहाँ स्पेशलाइज्ड क्राफ्ट्स होती थी. यहाँ पे व्हील्ड ट्रांसपोर्ट होता था. सो यू हैड व्हील्ड ट्रांसपोर्ट. ठीक है, ये वाली सारी चीज़ें आपकी अर्ली हड़प्पन फेज़ में आती थी. ऑल राइट, दैट ऑल्सो हियर वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि दिस फेज हैड नो लार्ज cities. ठीक है, even though they had some sort of specialized crafts, they did not have much expertise in craft specialization. Large cities नहीं थी यहाँ पे, but ठीक है, थोड़ा बहुत fortification था, specialized crafts भी थे, wheeled transport थी, but इतनी बड़ी large cities नहीं थी. ठीक है, this eventually changed in the mature Harappan phase. So when we talk about the mature Harappan phase, ठीक है, मेच्योर हड़प्पन फेज वॉज बेसिकली नोन एज योर इंटीग्रेशन एरा. अब ये इंटीग्रेशन एरा क्या है? इट वॉज द अर्बन फेज. ठीक है, यहाँ पे आपका फाइनली अर्बन फेज शुरू होता है. ठीक है, अर्बन फेज ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम हियर. इट शोज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फुल फ्लेजेड अर्बनाइजेशन. ठीक है, यहाँ पे आपके फुल फ्लेजेड सिविलाइजेशन के वो भी आ जाते हैं, सारी की सारी फीचर्स. तो इसमें आपका आ जाएगा इट इज़ हियर वेर ऑल द एक्सकवेशंस ऑल्सो स्टार्टेड. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हियर वी हैव फाइनली एक्सकवेटेड साइट्स. ठीक है, हाउएवर हियर यू हैव टू रिमेंबर कि इधर हमें रेड एंड ब्लैक पॉटरी मिली है. ठीक है, एंड वी हैव फाउंड टेराकोटा फिगरीन्स. Here we have found terracotta figurines, and we have also found standardized brick size. एक standard brick size होता था इनका, और वो standard brick size क्या था इनका? 1:2:4. So this is all we have found here in mature Harappan sites. ठीक है, then finally we have the late Harappan phase. अब ये जो late Harappan phase है, I'll write it over here. ठीक है, जो हमारा जस्ट अ सेकेंड गाइज, या तो जो हमारा यहाँ पे लेट मी राइट इट हो, जो हमारा लेट हड़प्पन फेज है. नाउ लेट हड़प्पन फेज वॉज बेसिकली योर लोकलाइजेशन एरा. ठीक है, व्हाट इज़ दिस लोकलाइजेशन एरा? दिस इज़ पोस्ट अर्बन. हमारा अर्बन फेज तो मेच्योर वाला था, ये हमारा हो गया पोस्ट अर्बन फेज. ठीक है, यहाँ पे हमारा फाइनली डिक्लाइन ऑफ सिटीज़ होना शुरू हो जाता है. लेट हड़प्पा में डिक्लाइन ऑफ सिटीज़ इज़ प्रेवलेंट. ठीक है, एंड दिस इज़ द फाइनल, ऑब्वियसली लाइक आई सेड, दिस इज़ द फाइनल फेज ऑफ आर हड़प्पन सिविलाइजेशन. यहाँ पे जो भी सेटलमेंट्स थी आपकी, वो जो सेटलमेंट्स थी वो बहुत स्मॉल हो गई. ठीक है, लोकलाइज्ड हो गई, स्मॉल हो गई. तो यहाँ पे ग्रेजुअल चेंजेस आने लगे आपके इन पॉटरी. ठीक है, इन पॉटरी सील्स, तो इसमें भी आपके चेंजेस आने लग गए. ठीक है, तो ये सब से हमें पता चलता है कि दिस वाज द फेज ऑफ डिक्लाइन, फाइनल फेज, एंड यहाँ से आपका डिक्लाइन ऑफ सिटीज़ हैज़ फाइनली बिगन. ठीक है, तो एक तो हमने इनके बारे में बात कर ली कि हमारा अर्ली हड़प्पन, मेच्योर हड़प्पन और लेट हड़प्पन क्या है. लेट मी जस्ट टेल यू वंस अगेन. अर्ली हड़प्पन हमारा रीजनलाइजेशन एरा था, जिसमें हम इनको हाकरा फेज ऑफ सेटलमेंट भी कहते थे. यहाँ पे हमें फोर्टिफिकेशन, स्पेशलाइज्ड क्राफ्ट, व्हील्ड ट्रांसपोर्ट मिले हैं. हाउएवर देयर इज़ लेस लार्ज सिटीज़. ठीक है, लार्ज सिटीज़ आपकी मेच्योर हड़प्पन फेज़ में आती है, जिसको हम इंटीग्रेशन एरा भी कहते हैं. ये फाइनली आपका अर्बन फेज़ माना जाता है कि यहाँ पे फुल फ्लेजेड सिविलाइजेशन चल रही है. यहाँ पे आपकी एक्सकवेशंस भी हो रही हैं, यहाँ पे आपको रेड एंड ब्लैक पॉटरी मिल रही है, टेराकोटा फिगरीन्स मिल रहे हैं, एक स्टैंडर्डाइज्ड ब्रिक साइज़ यूज़ हो रहा है. हर हाउस का एक स्टैंडर्डाइज्ड ब्रिक साइज़ है, विच इज़ 1:2:4. ठीक है, एंड देन फाइनली इन लेट हड़प्पा, विच इज़ ऑल्सो नोन एज द लोकलाइजेशन एरा. यहाँ पे क्या हो रहा है? ये आपका फाइनल फेज़ है, पोस्ट अर्बन है. अर्बनाइजेशन वाला फेज़ आपका कौन सा था? मेच्योर हड़प्पा का. ठीक है, लेट हड़प्पा इज़ लोकलाइज्ड एंड डिक्लाइन ऑफ सिटीज़ हैव बिगन हियर. सेटलमेंट्स जो हैं दे हैव बिकम स्मॉलर. ठीक है, एंड यू कैन फाइनली सी सम ग्रेजुअल चेंजेस इन पॉटरी एंड सील्स. सो दिस मार्क्स
आर लेट हरप्पन एरा। ठीक है, अब फाइनली वील कम टू द टाउन प्लानिंग। अब हम एक एक करके हरप्पन सिविलाइजेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ेंगे। ठीक है, वेरी सिंपल कैरेक्टरिस्टिक्स, इसमें ऐसा कुछ समझाने वाला भी नहीं है, जस्ट वेरी सिंपली यू कैन गो थ्रू देम एंड लर्न देम। और मैंने पॉइंट्स फॉर्म में लिखा है, तो इट विल बिकम ईजियर फॉर यू टू रिटेन दोज पॉइंट्स ओनली, क्योंकि और इससे ज़्यादा कुछ है भी नहीं ज़्यादा। ठीक है, सो इट विल बी ईजियर फॉर यू टू learn the points also. So now when we come to town planning, तो town planning में as I said कि town planning was one of the most important features of Indus Valley civilization, which showed us कि how advanced our civilization was. तो हरप्पन cities were well planned. ठीक है, सबसे पहले तो obviously they had an urban outlook, ये आपको पता होना चाहिए कि urban outlook तो था ही उनका। ठीक है, दे वर वेल प्लान्ड। और वेल प्लान्ड का मतलब क्या है, एक उनका दे यूज टू फॉलो द ग्रिड पैटर्न। सो ग्रिड पैटर्न इज लाइक कि ऐसे ऐसे जाके स्ट्रीट्स जा रही हैं आपकी। ठीक है, सो यू कैन सी हियर कि ये 1990 डिग्री पे कट हुआ है। तो यहाँ पे आई हैव रिटन हियर कि स्ट्रीट्स क्रॉस्ड ईच अदर एट राइट एंगल्स। ठीक है, एक ऐसे जा रही है, एक ऐसे जा रही है, तो यहाँ पे ऐसे 90 डिग्री बन रहा है, ऐसे जा रही है तो ये 90 डिग्री बन रहा है, ऐसे करके पूरा का पूरा स्ट्रीट का आपका पैटर्न था। ठीक है, सो दे बेसिकली फॉर्म रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स। अब इसके टू पार्ट्स ऑफ द सिटी वर देयर, सिटाडेल एंड लोअर टाउन। नाउ सिटाडेल वाज आल्सो नोन एज द अपर टाउन विच वाज लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न साइड। ठीक है, सिटाडेल वाज लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न साइड एंड इट वाज द फोर्टिफाइड एरिया। इट इज़ पॉसिबल फॉर द रूलिंग क्लास। ठीक है, पॉसिबली फॉर द रूलिंग क्लास और द रिच क्लास यूज टू लिव हियर इन सिटाडेल। देन कम्स योर लोअर टाउन। लोअर टाउन आपका रेसिडेंशियल एरिया था, हाउसेज ऑफ कॉमन पीपल आर प्रेवलेंट हियर। ठीक है, तो ये तो आपका पार्ट्स ऑफ सिटी हो गया कि भाई कौन से किस पार्ट में डिवाइडेड था। एक सिटाडेल विच वॉज द अपर टाउन एंड देन द लोअर टाउन विच वॉज द रेसिडेंशियल एरिया और हाउस ऑफ कॉमन पीपल। ठीक है, देन थोड़े बहुत आर्किटेक्चर क्या मिले हैं हमें, तो उसमें हमारे पास है स्टैंडर्डाइज्ड बर्न्ट ब्रिक्स। ठीक है, लाइक आई सेड कि हमारा स्टैंडर्डाइज्ड बर्न्ट ब्रिक का वो साइज़ क्या था, 1:2:4। ठीक है, तो हमें यहाँ स्टैंडर्डाइज्ड बर्न्ट ब्रिक्स मिले हैं। नो स्टोन बिल्डिंग्स हैव बीन फाउंड, लाइक ऑलमोस्ट नो स्टोन बिल्डिंग्स हैव बीन फाउंड। ठीक है, हाउसेस के पास हमारा साइड एंट्रेंस था, कोर्टयार्ड था, बाथरूम था। तो साइड एंट्रेंस से हमें क्या पता चलता है कि ऑब्वियसली इफ साइड एंट्रेंस वॉज देयर देन प्रिवेसी बहुत मानते थे ये लोग। ठीक है, हाई प्रिवेसी वॉज देयर, कोई भी सामने वाले दरवाजे से ऐसे घुसते हुए नहीं चला आता था। सो वी हैड साइड एंट्रेंसेज, देन वी हैड कोर्टयार्ड्स एंड वी ऑल्सो हैड बाथरूम्स। ठीक है, ऑब्वियसली इट इज़ वेरी फेमस फॉर आर ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट ड्रेनेज सिस्टम्स इन द एंशिएंट वर्ल्ड। क्या है इसके फीचर्स, वेरी सिंपल, इट हैड कवर्ड ड्रेन्स। ठीक है, ड्रेन्स वर कनेक्टेड टू द स्ट्रीट ड्रेन्स एंड मैनहोल्स वर प्रोवाइडेड जिसमें से कूड़ा साफ करते थे ये लोग। एवरी हाउस हैड अ बाथरूम एंड अ टॉयलेट। ठीक है, देयर वाज एब्सोल्युटली नो हाउस जहाँ पे बाथरूम एंड टॉयलेट नहीं है। तो ये लोग इतने मतलब दे वांटेड टू कीप देयर सराउंडिंग्स वेरी क्लीन एंड नीट। ठीक है, तो ये देखो ये इस टाइम पे कितना उनका एडवांस सोच थी, जो कि हमारे आज भी कंट्री में ऐसा नहीं है कि वी हैव अ बाथरूम एंड अ टॉयलेट इन एवरी हाउस। नाउ मे बी येस थिंग्स हैव चेंज्ड, बट अर्लियर we all know that there were less bathrooms, less toilets and people used to go outside for toilet. अब तो फिर भी गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीज़ें ऐसी करी हैं जो रूरल एरियाज हैव डेफिनेटली इम्प्रूव्ड अ लॉट। ठीक है, अगेन दे हैड द सिस्टम ऑफ वाटर मैनेजमेंट। हरप्पन्स हैड एन एडवांस्ड वाटर मैनेजमेंट। इसमें हमारे पास वी हैव फाउंड मोर देन 700 वेल्स एट मोहनजोदारो। ठीक है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एट धोलावीरा। नॉट धोलावीरा इज़ लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ठीक है, एंड हमें यहाँ पे 16 रेजर्वॉयर्स भी मिले हैं। ठीक है, तो धोलावीरा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमारा ये वाटर मैनेजमेंट भी हो चुका है, ड्रेनेज पैटर्न भी हो चुका है एंड वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट द टाउन प्लानिंग। ठीक है, इसमें अब हम आगे जब बढ़ेंगे तो वील बी टॉकिंग अबाउट आर ग्रेट बाथ। दिस इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आर आर्किटेक्चर ओनली। ठीक है, ग्रेट बाथ। नाउ ग्रेट बाथ आपका क्या है, दिस वॉज एन इम्पॉर्टेंट पब्लिक स्ट्रक्चर। अब इसमें आपका फीचर ये है कि इट वॉज बेसिकली अ लार्ज वाटर टैंक। ठीक है, एंड
steps leading into the bath, rooms around the bath which might have been used for ritual bathing. एक बहुत ही बड़ा वाटर टैंक होता था, ठीक है. आप मान लो कि जैसे ये एक बाथ है, ठीक है, एक ऐसे रेक्टेंगुलर सा वो है, इट्स लुकिंग लाइक अ स्क्वायर हियर, बट ये आपका मान लो ये स्टेयर्स हैं चारों तरफ, ठीक है. आप इस स्टेयर्स से नीचे उतर के यहाँ पे ऑब्वियसली पानी 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 पूरा आपका. नाउ दिस यहाँ पे रूम, हर जगह इट वाज सराउंडेड बाय दीज रूम्स, ठीक है. रूम्स फॉर चेंजिंग, रूम्स फॉर obviously for you to change and everything, and then you can enter the great bath area and you can go down the steps. ये आपकी stairs होती थी, ठीक है. तो ऐसे टाइप का एक आपका फीचर होता था ग्रेट बाथ. तो यहाँ पे लार्ज वाटर टैंक था, स्टेप्स थी विच विल लेड इनटू द बाथ, रूम्स थे अराउंड द बाथ, ठीक है, फॉर चेंजिंग एंड एवरीथिंग. एंड येस देयर वाज आल्सो अ रूम वेयर योर वेल वाज देयर, ठीक है, एंड वाटर वॉज ड्रॉन फ्रॉम हियर. ग्रेट बाथ के अराउंड में एक कमरा उस वेल के लिए भी होता था, उस वेल में से वाटर आप ले सकते थे एंड अपना बाथ कर सकते थे, ठीक है. अगेन दिस हैज़ बीन फाउंड एट मोहनजोदारो, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. देन वी हैव ग्रेनरीज हमें एविडेंस देती हैं फूड स्टोरेज का, और वो हमें सबसे ज़्यादा हड़प्पा से मिला है. अगेन वी हैव फाउंड 6 ग्रेनरीज विच वर अरेंज्ड इन 2 rows. एंड सबसे ज़्यादा हमें कौन सी ग्रेनरीज मिली है? व्हीट एंड बार्ले ग्रेन्स की, ठीक है. देन वी हैव एग्रीकल्चर. यहाँ पे हड़प्पन्स एक्चुअली स्टार्टेड डेवलपिंग एग्रीकल्चर. मेन क्रॉप्स उनके व्हीट एंड बार्ले थे. यहाँ पे भी मैंने आपको बताया व्हीट एंड बार्ले. अदर क्रॉप्स वर ऑल्सो प्रेजेंट है, जैसे कि राइस हमें मिला है लोथाल एंड रंगपुर से. देन वी हैव फाउंड डेट्स, मस्टर्ड्स, सेसमी, लेग्यूम्स एंड कॉटन, ठीक है. कॉटन हमें मिला है, तो ये याद रखना कि येस हड़प्पन सिविलाइजेशन न्यू कॉटन, ठीक है. सो हाँ, ये भी यहाँ पे मैंने लिखा है कि फर्स्ट वन टू कल्टिवेट कॉटन इन द वर्ल्ड वॉज हड़प्पन सिविलाइजेशन. तो कॉटन बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अपार्ट फ्रॉम व्हीट एंड बार्ले, क्योंकि ये मेन क्रॉप्स थे. एंड वी हैव टू रिमेंबर राइस, हमें राइस मिला है लोथाल और रंगपुर से, ठीक है. देन अगेन वी हैव इरीगेशन. वी हैड वेल इरीगेशन फाउंड एट अलादीनो एट सिंध, ठीक है. हमें वेल इरीगेशन मिला है. डैम्स हमें मिले हैं ढोलावीरा में. अगेन व्हाट आई टोल्ड यू अबाउट ढोलावीरा में आपका एक वाटर मैनेजमेंट सिस्टम बहुत अच्छा था, ठीक है. वाटर मैनेजमेंट सिस्टम था, रेन वाटर हार्वेस्टिंग थी, और रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बाद आपको डैम्स भी मिले हैं. तो सोचो यहाँ पे कितना अच्छी तरीके से इन्होंने ढोलावीरा में बताया है कि भाई हमारा बहुत ही सही ड्रेनेज सिस्टम और रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम था. Then we have also found evidence of plowed fields at Kalibangan, ठीक है. These are the sites which you actually have to learn. You cannot skip these sites. कि हमें राइस कहाँ से मिला है, वेरी इंपॉर्टेंट. हमें ग्रेनरी कहाँ पे मिली है सबसे ज़्यादा, वो हड़प्पा में मिली है. ग्रेट बाथ का एग्जाम्पल मोहनजोदारो में है. सो वी कैनॉट स्किप दिस, ठीक है. नाउ वील कम टू डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स. यहाँ पे हमें डोमेस्टिकेट किए हैं एनिमल्स लाइक कैटल, बफलो, शीप, गोट्स, पिग्स, डॉग्स, कैट्स, कैमल्स एंड एलिफेंट्स, ठीक है. यहाँ पे एक वो है कि सुरका टोडा में हमें रिमेन मिला है, जो कि हमें लगता है कि इट्स अ हॉर्स, बट एविडेंस इज डाउटफुल बिकॉज वी आर अनश्योर कि वॉज IVC अ हॉर्स सेंट्रिक सिविलाइजेशन और नॉट, ठीक है. वी आर स्टिल अनश्योर कि वॉज इट हॉर्स सेंट्रिक और नॉट, क्योंकि IVC में हमें हॉर्स का एविडेंस बहुत ही मतलब नेग्लिजिबल है. एंड वी आर नॉट श्योर कि जो हमें रिमेन सुरका टोडा में मिले हैं, तो वो हैं भी या नहीं है, ठीक है. सो द एविडेंस इज डाउटफुल. देयरफॉर हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज नॉट हॉर्स सेंट्रिक. ये पॉइंट आप याद रख लेना, ये हमारा हॉर्स सेंट्रिक नहीं था. ये वैसे भी हमारा वैदिक पीरियड में आता है बाद में, ठीक है. horses we'll find more in the Vedic period. I'll tell you how also. Then technology and craft. Obviously they had specialized artisans, ठीक है. क्राफ्ट्स इनके पास ब्रॉन्ज स्मिथ, गोल्ड स्मिथ, सिल्वर स्मिथ, ब्रिक मेकर्स, स्टैंडर्डाइज्ड ब्रिक्स जो बनाते थे ये लोग, ठीक है. स्टैंडर्ड ब्रिक्स आपकी बनती थी. तो ब्रिक मेकर्स, स्टोन कटर्स, वीवर्स, ये सब हमारे एग्जिस्ट करते थे, ठीक है. एविडेंस क्या है हमारा? एविडेंस ये है कि स्पिंडल वॉल्स हैव बीन
फाउंड विच वर यूज्ड फॉर वीविंग। मेटल्स कौन से अपने यूज़ हुए हैं, हमारे पास कॉपर था, टिन था, गोल्ड था और सिल्वर था। अब ये कॉपर कहाँ से आता था, खेतरी माइंस ऑफ राजस्थान, ठीक है, खेतरी माइंस ऑफ राजस्थान। टिन, गोल्ड और सिल्वर, ये तीनों चीज़ें हम अफ़गानिस्तान से मंगाते थे, ठीक है। टिन, गोल्ड, सिल्वर हम तीनों अफ़गानिस्तान से मंगाते थे। टिन, गोल्ड, सिल्वर अफ़गानिस्तान से, कॉपर फ्रॉम खेतरी माइंस, ठीक है। गोल्ड एक हमारी कोलार माइन से भी आती थी और एक सिल्वर जो थी वो ज्वार माइंस से भी आती थी। इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़ क्या हैं हमारी जो उस टाइम पे प्रेजेंट थी, बीड मेकिंग, स्टील मेकिंग, टेराकोटा मैन्युफैक्चरिंग, बोट बिल्डिंग, शिप बिल्डिंग, ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़ थी जो उस टाइम पे अवेलेबल थी, ठीक है। ट्रेड एंड कॉमर्स, नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट ट्रेड एंड कॉमर्स, हड़प्पन हैड इंटरनल एज वेल एज फॉरेन ट्रेड, ठीक है। जो आपका ट्रेड सिस्टम था इट वॉज ऑब्वियसली बेस्ड ऑन बार्टर सिस्टम एंड कॉइन्स वर नॉट प्रेजेंट एट दैट टाइम, ठीक है। कॉइन्स वर नॉट यूज्ड, लेट्स से लाइक दैट, ठीक है, कॉइन्स वहाँ पे यूज़ नहीं होते थे। अगेन अब फॉरेन ट्रेड का हमारा ऑब्वियसली मेंशन है कि हड़प्पन्स ट्रेडेड विद मेसोपोटामिया, ठीक है, सेंट्रल एशिया, पर्शिया, अफ़गानिस्तान, बहरीन एंड ओमान। तो ये वाली हमारी हड़प्पन्स की साइट्स थी जो कि ट्रेड जिनके साथ उन्होंने किया है। सो वी कैन नॉट स्किप दिस ऑल्सो बिकॉज दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हम इसमें एक चीज़ मैं ये मेंशन करना चाहूँगी, बहरीन का हमारा था दिलमुन, ये नाम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और हमारा यहाँ पे इसमें भी आप लिख लो, ओमान का बेसिकली माकरान कोस्ट था, ठीक है। तो ये भी हमारा वर्ड एक मेंशनड है। तो एक तो ये हो गया, तीसरा वर्ड हमारा एक मेंशनड है मेलुहा। सो दिस वर्ड मेलुहा वाज बेसिकली फॉर आईवीसी ओनली, ठीक है, ये इंदस के लिए ही बोलते थे, तो ये हमें पता होना चाहिए। Mesopotamians were the ones who used to call Indus as Meluha, ठीक है, ये हमें मेसोपोटामियन रिकॉर्ड्स में मिला है। तो यस, यहाँ से हमारा ट्रेड होता था, एक्सटर्नल ट्रेड थी हमारी, ठीक है, हमारी इंटरनल ट्रेड भी थी। तो एक चीज़ यहाँ पे लाइक आई सेड कि कोई हमारी मेटल करेंसी, मेटल कॉइन्स हमारे यूज़ नहीं होते थे, ठीक है, मेटल कॉइन्स हमारे बिल्कुल भी यूज़ नहीं होते थे, सारी चीज़ें हमारी बार्टर सिस्टम से ही होती थी, ठीक है। एविडेंस अब हमें क्या मिला है कि हमें हड़प्पन सील्स मिली हैं मेसोपोटामिया में। मेसोपोटामियन सील्स हैव आल्सो बीन फाउंड एट इंदस रीजन, जहाँ पे हमें मेंशन किया है मेसोपोटामिया में मेलुहा वर्ड हैज़ बीन मेंशन्ड फॉर इंदस, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ट्रेड एंड कॉमर्स। अब आप ट्रेड रूट्स देख लो कि भाई क्या ट्रेड रूट्स होते थे उस टाइम पे। वी हैड अ लैंड रूट एज वेल एज अ सी रूट। नाउ ट्रांसपोर्टेशन के लिए वी यूज्ड बुलक कार्ट्स एंड पैक्ड एनिमल्स एंड बोट्स, ठीक है। पोर्ट्स हमारे इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं ये आपको लर्न करने की ज़रूरत है बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे इम्पॉर्टेंट पोर्ट तो लोथाल, then you have Sutka Gendor, Aladino, Balakot, Kuntasi and Rangpur. These are some of the ports that existed back then. And then हमारे एक्सपोर्ट क्या क्या होते थे, लाइक कॉटन, पॉटरी, आइवरी, बीड्स एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। सो दीज वर द एक्सपोर्ट्स दैट हैपेंड। इम्पोर्ट्स में हमारे पास क्या आता था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे इम्पोर्ट्स। जेड हम आता था हमारा सेंट्रल एशिया से, टर्क्वाइस आता था पर्शिया से, लैपिस लेज़ुली अ ब्लू स्टोन होता था ये, ठीक है, एंड इट केम फ्रॉम अफगानिस्तान। टिन अफगानिस्तान, गोल्ड एंड सिल्वर अगैन फ्रॉम अफगानिस्तान। सो हमारा लाइक आई सेड लैपिस लेज़ुली अफगानिस्तान से, टिन भी अफगानिस्तान से, गोल्ड एंड सिल्वर भी अफगानिस्तान से। सो सी हाउ इम्पोर्टेंट अफगानिस्तान वॉज, ठीक है। फिर जेड हमारा सेंट्रल एशिया एंड टर्क्वाइस पर्शिया से आता था। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज सील्स। अब हमारे वहाँ पे सील्स भी बहुत इंपॉर्टेंट थी, ये एक इम्पॉर्टेंट हड़प्पन आर्टिफैक्ट है, ठीक है। इट वॉज मेड ऑफ स्टेटाइट। नाउ स्टेटाइट इज़ नथिंग बट अ सॉफ्ट स्टोन, ठीक है, यूजली स्क्वायर और रेक्टेंगुलर, एंड हमारे यहाँ पे सर्कुलर वाले सील्स थोड़े कम हैं, ठीक है। हमारे जो होते थे जो हमारे सील्स हैं वो यूजली स्क्वायर और रेक्टेंगुलर हैं, सर्कुलर नहीं है,
कंटेन्ड, दे डेफिनेटली कंटेन्ड एन एनिमल फिगर एंड इंस्क्रिप्शंस. अब एनिमल्स कौन से डिपिक्टेड थे? वी हैड बुल, बफलो, टाइगर, एलिफेंट, गोट, एंटीलोप एंड क्रोकोडाइल. रिमेंबर ये टाइगर हमारा वैदिक सिविलाइजेशन में मेंशन नहीं है, ठीक है. तो इट्स जस्ट अ पॉइंट विच आई विल ऑल्सो टेल यू इन द नेक्स्ट चैप्टर, इन द नेक्स्ट लेसन. बट हियर आई एम जस्ट मैंशनिंग कि टाइगर यहाँ पे मैंशनड है, लेकिन हमारा वैदिक पीरियड में टाइगर मैंशन नहीं है, ठीक है. हमारा मोस्ट फेमस सिंबल यहाँ पे क्या है? यूनिकॉर्न हैज़ बिन फाउंड, ठीक है. देन वील कम टू आवर हरप्पन स्क्रिप्ट. अब हरप्पन स्क्रिप्ट क्या है हमारी? हरप्पन स्क्रिप्ट सबसे पहले तो इट हैज़ नॉट बीन डिसाइफर्ड ओनली, ठीक है. वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू रिमेंबर, इट हैज़ नॉट बीन डिसाइफर्ड. तो अब हमारी इसमें क्या क्या है? पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है, पिक्चर्स हमारी अवेलेबल हैं उस पर, ठीक है. अल्फ़ाबेटिक कुछ नहीं है इसमें, अल्फ़ाबेट्स का हमारा कोई यूज़ नहीं है, पिक्चर्स हैं लेकिन, ठीक है. सो सम पिक्चर्स वी हैव फाउंड सम 400 to 600 symbols are there and 40 to 60 are basic signs, ठीक है. अगेन लैंग्वेज स्टिल अनडिसाइफर्ड. तो हरप्पन सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट है इट इज़ स्टिल अनडिसाइफर्ड, बट हमारी पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है. अब राइटिंग स्टाइल क्या था? बोस्ट्रोफिडॉन. अब बोस्ट्रोफिडॉन का बेसिकली मतलब क्या है कि फर्स्ट लाइन तो आप लिखते हो भाई राइट टू लेफ्ट, ठीक है. राइट टू लेफ्ट आपने लिखी, देन सेकेंड लाइन लेफ्ट टू राइट. तो यहाँ से शुरू करो फिर ऐसे जाओ, या फिर आप यहाँ से शुरू करो फिर ऐसे जाओ, ऐसे, ठीक है. ऐसे ऐसे करके आप लिखते थे. लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट लिखते थे, देन लेफ़्ट टू राइट, ठीक है. वी स्टार्टेड फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट and then left to right. So this was your Bostrofidon. This was the writing style used in the Harappan script. अब यहाँ पे political system exist करता था या नहीं करता था, we'll talk about that. So Harappan civilization had a uniform culture, maybe suggesting some sort of central authority. We don't know that yet कि central authority थी या नहीं थी, but yes there is some sort of suggestion कि ठीक है central authority exist शायद करती हो. तो ऑब्वियसली 3 parts ऑफ द सिटी वर देयर. एक तो सिटाडेल, रूलर्स एंड लोअर टाउन कॉमन पीपल, लाइक आई टोल्ड यू. एक हमारा मिडिल टाउन मिला है, एंड वो मिडिल टाउन भी आपको मिला है ढोलावीरा में, ठीक है. ये मिडिल टाउन जो आपको ढोलावीरा में मिला है, यहाँ से हम पता लगा सकते हैं कि शायद मिडिल टाउन में ब्यूरोक्रेट्स रहते हों, ठीक है. वैसे तो मेन हमारा सिटाडेल और लोअर टाउन है, मिडिल टाउन हमें हर जगह नहीं मिला है. वी हैवंट फाउंड मिडिल टाउन इन एवरी प्लेस, ठीक है. एट ऑल द प्लेसेज वी हैवंट फाउंड मिडिल टाउन, बट येस एट ढोलावीरा वी हैव फाउंड अ मिडिल टाउन ऑल्सो. सो मे बी देयर ब्यूरोक्रेट्स माइट हैव लिव्ड, ऐसा कहा गया है. इट इज़ जस्ट अ सजेशन, वी आर नॉट 100% श्योर. हाउएवर देयर इज़ नो क्लियर एविडेंस ऑफ किंग्स एंड नो पैलेसेस हैव बिन फाउंड, ठीक है. मे बी सिटाडेल में रूलर्स रहते थे हमें, लेकिन कोई एविडेंस नहीं है कि कोई किंग रहता था वहाँ पे. मिडिल टाउन में शायद ब्यूरोक्रेट्स रहते थे, एंड लोअर टाउन में तो कॉमन पीपल रहते थे, ठीक है. सो दिस इज़ सजेशन एंड assumption which they have done. However, we don't have any clear evidence of kings and we also don't have any palaces, ठीक है. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, रिलीजन कैसा था उनका. हमें एविडेंस इनका भी सील्स और फिगरीन्स से मिलता है, ठीक है. अब सबसे इम्पॉर्टेंट एविडेंस तो है भाई मदर गॉडेस, ठीक है. टेराकोटा फीमेल फिगरीन्स which basically represent fertility. I think in the last class also I told you कि how mother goddesses had started to come, ठीक है. terracotta figurines had female figurines were there and they obviously represented fertility, so they really worship mother goddesses for fertility, ठीक है. and then there has been a evidence of male deity, जो कि हम मानते हैं it's a male deity. हमें पशुपति सील मिले हैं जिसको हम प्रोटो शिवा भी कहते हैं, ठीक है. इसमें क्या है, वी हैव अ पोस्चर विच इज़ सिटिंग इन अ योगिक मैनर सराउंडेड बाय एनिमल्स, ठीक है. सराउंडेड बाय दीज एनिमल्स एंड पॉसिबली इट इज़ बिलीव्ड दैट इट इज़ अर्ली फॉर्म ऑफ लॉर्ड शिवा, ठीक है. अब हमें एक चीज़ इसमें देखनी है कि हमारे पशुपति सील में, इन आवर पशुपति सील, व्हाट एनिमल्स वर देयर. ये हमने यहाँ पे जो सराउंडेड बाय एनिमल्स लिखा है, तो उसमें कौन कौन से एनिमल्स थे. हियर यू हैव टू लर्न दिस कि हमारे 4 एनिमल्स मिले हैं. एक तो हमें एलिफेंट मिला है, ठीक है. हमें ऑब्वियसली टाइगर मिला है, लाइक आई सेड यहाँ पे टाइगर मेंशन्ड है.
देन वी हैव फाउंड अ राइनो एंड वी हैव फाउंड अ बफलो. तो ये तो हमें यहाँ पे 4 एनिमल्स मिले हैं इन पशुपति सील. ठीक है. ऑल्सो प्लस ये तो 4 मेन है, प्लस वी हैव 2 डियर लाइक एंटेलोप्स. ठीक है. तो यू जस्ट राइट कि हमें 2 डियर्स भी मिले हैं. तो ये एनिमल्स आपको याद होने चाहिए. वी हैव फाउंड एलिफेंट, टाइगर, राइनो एंड बफलो एंड 2 डियर्स. ठीक है. सो ये हमें पता होना चाहिए. सो प्रोटोशिवा पशुपति सील हम इनको मानते हैं. मे बी ही वॉज लॉर्ड ऑफ एनिमल्स. ठीक है, हम उनको ऐसे भी बोल सकते हैं. एंड हमें इस सील से ऑब्वियसली पता चलता है कि वाइल्ड लाइफ वॉज डेफिनेटली पावरफुल. ठीक है, हमारी जो वाइल्ड लाइफ थी यहाँ पे डेफिनेटली वेरी वेरी पावरफुल. ठीक है. नेचर को कितना ये मानते थे. नेचर वर्शिप ऑब्वियसली बहुत था. ठीक है. यहाँ पे हमने देखा कि हाउ मदर गॉडेसेस वर ऑल्सो वर्शिप फॉर फर्टिलिटी. देन अदर रिलीजियस प्रैक्टिसेस देख लो. लाइक आई सेड नेचर वर्शिप थी, तो यहाँ पे पीपल ट्री को वर्शिप करते थे. एनिमल लाइक बुल फिगरीन्स हैव बीन फाउंड. इनके भी फैलिक सिम्बल्स भी हमें मिले हैं, जैसे लिंग की फॉर्म में जो होते हैं ना, जो हमें अभी लिंग की फॉर्म में मिलते हैं. वी हैव फाउंड फैलिक सिम्बल्स ऑल्सो एंड फीमेल सिम्बल्स ऑफ योनीज हैव ऑल्सो बिन फाउंड. अगेन एम्यूलेट्स यूज्ड फॉर प्रोटेक्शन. तो हमारे यहाँ एम्यूलेट्स भी मिले हैं फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम द इविल स्पिरिट्स. ठीक है. तो हमको ये सब मिला है. हाँ, लाइक आई ऑल्सो सेड वी ऑल्सो फाउंड वन हॉर्न्ड राइनो यूनिकॉर्न हेयर. बेसिकली एक चीज़ मानी गई है कि हमें जो ये वन हॉर्न यूनिकॉर्न मिला है, इट माइट बी वन हॉर्न राइनो. ठीक है. लेकिन हमें यूनिकॉर्न की, एज यू कैन सी कि यूनिकॉर्न बहुत ही ज़्यादा फेमस था इस टाइम पे. ठीक है. सो ये चीज़ हमारी हो गई. वी हैव come to an end of religious practices also. And like I said, हमारा fertility goddess and पशुपति seal. ठीक है. नेक्स्ट वी विल कम टू आर्ट एंड स्कल्पचर, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट. हमारे आर्ट एंड कल्चर में क्या मिला है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाउंड अ ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल विच वॉज फाउंड एट मोहनजोदारो. ठीक है. ये जो ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल है, इसकी एक टेक्निक यूज हुई थी, लॉस्ट वैक्स टेक्निक. सो व्हाट इज दिस लॉस्ट वैक्स टेक्निक? लेट मी टेल यू व्हाट एग्जैक्टली दिस इज. ठीक है. लॉस्ट वैक्स टेक्निक में क्या होता है, दिस इज एन एंशियंट मेटल. लेट मी राइट इट डाउन. सो दिस इज बेसिकली एन एंशियंट मेटल कास्टिंग मेथड. ठीक है. इसमें होता क्या है, एक वैक्स का मॉडल होता है. ठीक है. लेट मी जस्ट टेल यू, वैक्स मॉडल को कोट किया जाता है विथ क्ले. ठीक है. दिस वैक्स मॉडल इज कोटेड विथ क्ले एंड देन दिस थिंग इज हीटेड. ठीक है. टू मेल्ट आउट द वैक्स. तो हम क्या करते हैं, एक तो हम अपना वैक्स मॉडल बना लेते हैं, उसको हम कोट कर देते हैं क्ले से. ठीक है. फिर हम उसको थोड़ा धीरे धीरे हीट करते हैं, जिससे वैक्स वाला चीज़ होता है वो मेल्ट हो जाता है. एंड दैट एरिया वी विल फिल इट विद मॉल्टन मेटल. ठीक है. उस एरिया को हम मॉल्टन मेटल से फिल कर देते हैं, विच क्रिएट्स वेरी इंट्रिकेट स्कल्पचर्स. ठीक है. तो हमारा क्या हो गया, ये वैक्स मॉडल हम पहले बनाते हैं, देन वी कोट इट विथ क्ले, देन वी हीट द वैक्स. ठीक है. एंड इट मेल्ट्स. व्हेन वी हीट टू मेल्ट आउट द वैक्स, वी फिल इट विद मॉल्टन मेटल. तो जैसे ही हम मॉल्टन मेटल को फिल कर देते हैं इसके अंदर, ठीक है, तो उससे क्या होता है, हमारा एक अच्छी सी शेप बन जाती है. ठीक है. जो कि हम इंडस वैली सिविलाइजेशन में एज डांसिंग गर्ल, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल को वो करते हैं. एंड दिस हैज़ ऑल्सो बिन, यू नो, दिस टेक्निक हैज़ ऑल्सो बिन यूज्ड इन चोलाज. ठीक है. जब हम चोलाज की बात करेंगे, आई विल टेल यू कि हाउ दे ऑल्सो यूज दिस मेथड. तो दिस इज़ सो इम्पॉर्टेंट. ठीक है. अगेन हमें यहाँ ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल, मैंने आपको बताया कि लॉस्ट वैक्स टेक्निक से यूज़ हुआ है. लाइक आई सेड कि कैसा होता है लॉस्ट वैक्स टेक्निक. ठीक है. देन वी हैव प्रीस्ट किंग स्टैचू, जहाँ पे प्रीस्ट किंग स्टैचू हैज़ बीन मेड ऑफ स्टेटाइट एंड अगेन दिस हैज़ बीन फाउंड एट मोहनजोदारो. ये जगहें याद रख लेना प्लीज़. ठीक है. ये स्टेटाइट के बने हैं.
और प्रीस्ट किंग में अगर हम बात करें कि भाई प्रीस्ट किंग की क्या चीज़ थी, तो हम स्टैचू की बात करते हैं। उसमें दो चीज़ें यू हैव टू रिमेंबर कि सबसे पहले तो ऑब्वियसली ये स्टेटाइट का था, ठीक है, स्टेटाइट के बने थे ये। एंड एक चीज़ इसमें ये है कि जो इसमें इनकी कुछ शॉल टाइप चीज़ है या क्लॉथ मान लो, वो चीज़ पे एक ट्रिफॉइल का पैटर्न है, ट्री सॉर्ट ऑफ पैटर्न है, ठीक है, एंड सर्कल डिज़ाइंस हैं। तो दिस इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट कि देखो वो कितने अच्छे से यू नो आर्टिस्टिक स्किल्स उनकी कितनी अच्छी थी। एंड मे बी इट माइट बी यू नो प्रेजेंट एट द हाउस ऑफ सम पोटेंशियल एलीट क्लास, ठीक है। ऑब्वियसली प्रीस्ट किंग को इनने कैसे डिपिक्ट किया, ही वॉज अ बियर्डेड मैन, ठीक है, विद अ शॉल और अ क्लॉथ विद ट्रिफॉइल पैटर्न एंड सर्कुलर डिज़ाइन, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। स्टेटाइट अगेन आई टोल्ड यू ये सोप स्टोन होता है, ठीक है, ये आप याद रखना कि स्टेटाइट होता क्या है, सोप स्टोन, ठीक है। एंड दिस इज़ व्हाट योर प्रीस्ट किंग वॉज। तो अभी हमारा इसमें ख़त्म हो गया है आर्ट एंड स्कल्पचर का। नाउ विल कम टू टेराकोटा फिगरीन्स। नाउ व्हाट आर दीज टेराकोटा फिगरीन्स? दे वर मेड ऑफ बेक्ड क्लेज। अब ये हैंड मॉडल्ड होती थी। मेल एंड फीमेल फिगरीन्स हैव फाउंड, बर्ड्स एंड एनिमल्स हैव ऑल्सो बिन फाउंड, एंड एनिमल्स शोन डॉग्स, मंकीज, शीप्स एंड बुल्स, ये वाले एनिमल्स आर शोन, ठीक है। देन लेट्स कम टू पॉटरी। पॉटरी हमें ब्लैक एंड रेड वेयर मिली है, लाइक आई ऑलरेडी टोल्ड यू, वो हमें पीछे भी मैंने बताया आपको, ब्लैक एंड रेड वेयर पॉटरी मिली है हमें। फीचर्स क्या हैं व्हील मेड पॉटरी, क्योंकि न्योलिथिक में हमने पढ़ा था कि फाइनली पॉटर्स व्हील आ जाता है, ठीक है, तो हैंडमेड से अब व्हील मेड हो जाती है पॉटरी। पेंटेड डिज़ाइंस हैं उसमें, डिश ऑन स्टैंड वेसल इज़ वेरी कॉमन, ठीक है। ब्लैक पेंटेड वेयर हैड अ रेड स्लिप कोटिंग। सो दिस इज़ आर पॉटरी। देन हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स, वेट्स एंड मेजर्स। दे हैड अ वेरी एक्यूरेट सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, ठीक है। अब वेट्स जो होते थे दे वो मेड अप ऑफ चर्च स्टोन फॉलोड बाय अ बाइनरी सिस्टम, मतलब 1 2 4 8 6 32 64 स्टैंडर्ड वेट्स का जो सीक्वेंस था वो ये था, ठीक है। दिस इज़ द सिस्टम दे फॉलोड, and from here 64 से they continued in decimal multiples of 16, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले तो हम 1 2 4 8 6 32 64 तक करते थे, एक स्टैंडर्ड वेट था ये, मतलब पहले तो हम बाइनरी सिस्टम कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये बाइनरी सिस्टम में चल रहा है, फिर हमारी जो कंटिन्यूशन है वो डेसिमल मल्टीपल्स ऑफ 16 के उसमें हो रही है। दे हैड एडवांस्ड नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स एज वी कैन get an information from here, ठीक है। they used a linear measurement system, units were very standardized across cities, मतलब हर सिटी में एक स्टैंडर्ड वेट ही यूज़ होता था, जिससे पता चलता है कि yes some sort of strong administrative control might have existed. now strong administrative control क्या वो किंग का था, we don't know, क्या वो प्रीस्ट का था, हमें प्रीस्ट किंग मिला है, we don't know, प्रीस्ट क्या अकेले में था या प्रीस्ट ही किंग था, we don't know that, ठीक है। तो हमें ये चीज़ें नहीं पता है, बट येस वी डू डेफिनेटली नो कि एक स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल तो था ही, ठीक है। नाउ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगेन द बरियल प्रैक्टिसेस विच वर यूज्ड, ठीक है। 3 टाइप्स ऑफ बरियल्स हैव बीन फाउंड। अच्छा, एक तो मोहनजोदारो एंड हड़प्पा में वी हैव डिफरेंट बरियल प्रैक्टिसेस, ठीक है। तो पहली तो अपनी आ गई एक कंप्लीट बरियल, जिसमें होल बॉडी वॉज बरीड इन अ पिट एंड स्केलेटल वॉज लेड एक्सटेंडेड ऑन द बैक एंड हेड वॉज जनरली टूवर्ड्स, मतलब आप सीधा जैसे आप लेट जाओ नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ में आपका हेड है एंड साउथ में आपका फीट है, ठीक है। दिस वॉज द मोस्ट कॉमन प्रैक्टिस। अब फ्रैक्शनल बरियल क्या होता है, बोन्स वो बरीड आफ्टर एक्सपोजर टू वाइल्ड एनिमल्स और बर्ड्स। पहले तो आप वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स को अपना बोन्स जो है बरीड वो स्किन और वो सब आपकी खा लेते हैं, यू नो, डेड बॉडी की, एंड देन दिस इंडिकेट्स दैट बॉडी में हैव बीन एक्सपोज्ड बिफोर बरियल। पहले तो हमने एनिमल्स को एक्सपोज किया एंड उसके बाद मे बी दे माइट हैव बीन यूज दे माइट हैव बीन बरीड। देन यू हैव पोस्ट क्रिमेशन।
उसमें क्या है जो अभी हम आजकल करते हैं, जैसे आफ्टर क्रिमेशन एशेज़ या बोन्स को आप बरी कर देते हो, ठीक है। हमारी तो एशेज़ होती हैं तो वी डू विसर्जन ऑफ द एशेज़, बट यहाँ पे क्या है, आफ्टर क्रिमेशन एशेज़ या बोन्स को बरी कर देते थे, ठीक है। स्पेशल बरियल एविडेंस क्या है यहाँ पे कि एक तो हमें वुडन कॉफिन्स मिले हैं हड़प्पा पे, पॉट बरियल्स मिली हैं कालीबंगन में, एंड ब्रिक चेम्बर्स मिले हैं हड़प्पा में, ठीक है। ग्रेव्स जो हैं दे वो मेड यूजिंग ब्रिक स्ट्रक्चर्स। तो ये आप एक बारी याद रख लेना कि हमारी ब्रिक चेम्बर्स हड़प्पा में जो कि ग्रेव्स थी वो ब्रिक स्ट्रक्चर से बनी थी, वुडन कॉफिन्स एट हड़प्पा एंड पॉट बरियल्स एट कालीबंगन, ठीक है। देन we have come to an end of IVC. So here we have theory of decline, why Harappan civilization declined. A lot of people here talk about the many theories have come up for decline of the Harappan civilization around 1900 BCE, and उसमें से सबसे ज़्यादा तो है आर्यन इन्वेजन थ्योरी। तो आर्यन इन्वेजन थ्योरी में तो कहते हैं कि भाई आर्यंस आए थे हमारे, उन्होंने हरप्पन सिविलाइजेशन को कम्प्लीटली मार के एंड दे इस्टेब्लिश द कंट्रोल। अब इसमें आर्यन इन्वेजन थ्योरी सपोर्ट किसने की है भाई, मॉर्टिमर व्हीलर ने, स्टुअर्ट पिगट एंड गॉर्डन चाइल्ड। आर्ग्यूमेंट यही है कि आर्यंस इन्वेडेड एंड दे डिस्ट्रॉयड द हरप्पन सिविलाइजेशन, और इसका एविडेंस का मिला है डिस्कवरी ऑफ ह्यूमन स्केलेटन्स एट मोहनजोदारो। हाउएवर मोस्ट ऑफ द हिस्टोरियंस रिजेक्ट दिस थ्योरी, ठीक है। अब ये वाली थ्योरी को क्यों रिजेक्ट करते हैं कि मे बी ये ह्यूमन स्केलेटन्स एक ही टाइम पे नहीं मिले हैं, दे वर फाउंड लेयर बाय लेयर, स्ट्रैटिफिकेशन उसमें। तो मतलब ये वाला इंसान शायद बहुत पहले मरा हो और ये वाला जो उसके ऊपर है वो शायद दूसरे टाइम में मरा हो, तो उसके ऊपर एक एक करके ऐसे स्केलेटन बन गया है, ठीक है। सो ह्यूमन स्केलेटन्स इवन दो येस वी फाउंड एट मोहनजोदारो डजंट मीन कि येस दे वर ऑल किल्ड एट द सेम टाइम। अगेन वी हैव नेचुरल कैलामिटीज़ की, वो कहते हैं कि सम हिस्टोरियंस बिलीव कि नेचुरल कैलामिटीज़ डिस्ट्रॉयड द सिटीज़। उसमें हमारे एग्जाम्पल आ गए फ्लड के, ठीक है। जैसे कि हमें राव एंड मैके ने बताया है कि सिटीज़ व इफेक्ट कौन सी हुई थी, मोहनजोदारो एंड चानूदारो। तो हमारी फ्लड से कौन सी सिटी इफेक्ट हुई है, मोहनजोदारो एंड चानूदारो। अर्थक्वेक सजेस्टेड बाय मार्शल एंड राइक्स, इन्होंने क्या बोला है कि कालीबंगन हमारी अर्थक्वेक की वजह से गई है, ठीक है। एंड ड्राइंग ऑफ रिवर्स इज़ वन ऑफ द मेन रीजन्स कि भाई CM साहनी ने बोला है कि हमारी कालीबंगन और बनावली, ठीक है, ये जो है यहाँ पे रिवर हमारी ड्राई होती चली गई तो वाटर सप्लाई कम हो गया और इसलिए एग्रीकल्चर भी गिर गया। ड्राइंग ऑफ रिवर्स फिर भी हम बहुत लोग इसको मानते हैं कि येस मे बी क्योंकि हमारी पूरी की पूरी IVC ही रिवर बेस्ड थी, ठीक है। तो फिर हो सकता है कि हमारी जो रिवर्स ड्राई अप हुई हैं उसकी वजह से वाटर सप्लाई कम है एंड एग्रीकल्चर कम हो गया हो। डिक्लाइन इन सॉइल फर्टिलिटी विच वॉज सजेस्टेड बाय DP अग्रवाल। पॉसिबल कॉजेज़ यही है कि भाई ओवर यूज़ कर लिया हो लैंड का, या डिफॉरेस्टेशन कर लिया हो, या सॉइल इरोजन की वजह से इट माइट हैव लेड टू डिक्लाइन ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। एंड नाउ वी हैव डिक्लाइन ऑफ ट्रेड। अच्छा, ये एक वो है कि हमें पता चला है कि मेसोपोटामियन ट्रेड्स के साथ सिटी के साथ हमारा सिविलाइजेशन के साथ हमारा ट्रेड डिक्रीज़ हुआ है। तो दिस बेसिकली अफेक्टेड योर क्राफ्ट सिस्टम एंड योर अर्बन इकोनॉमी। तो इसलिए हमारी IVC और डिक्लाइन होती चली गई क्योंकि ट्रेड डिक्लाइन हो रही थी, ठीक है। एक हमारा है एपिडेमिक्स विच वॉज सजेस्टेड बाय R. Kennedy. Possibly diseases like malaria could have caused population decline. He believes कि मलेरिया की वजह से पॉपुलेशन डिक्लाइन हो सकता है। एंड देन वी हैव अनदर 7th पॉइंट सजेस्टिंग क्लाइमेट चेंज। ये हो सकता है कि हमारी रेनफॉल कम हो चुकी हो, क्लाइमेट बिकेम मोर कोल्ड एंड मोर ड्राई, ठीक है, एंड कंडीशंस बिकेम अनसूटेबल फॉर लार्ज सिटीज़। तो हमारा एग्रीकल्चर भी इसमें अफेक्ट होगा, ठीक है। इट माइट हैव बीन इफेक्टेड। तो ये सब हमारा पता चलता है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारा शायद रेनफॉल कम हो गई हो या क्लाइमेट बिकेम कोल्ड और ड्रायर। सो बाई 1800 century BCE we had conditions which became unsuitable for large cities. सो इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन क्या है इस पूरे टॉपिक का कि येस द डिक्लाइन वॉज नॉट कॉज्ड बाय अ सिंगल रीजन, इट कैन बी मल्टीपल थिंग्स लाइक ऐसे क्लाइमेट चेंज हो सकता है, रिवर ड्राइंग हो सकती है, डिक्लाइन ऑफ ट्रेड भी हो सकता है, नेचुरल डिजास्टर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो एवरीथिंग ओवर हियर इज इम्पॉर्टेंट कि हमारे ये सारे फैक्टर्स हैं विच इवेंचुअली लेड टू डिक्लाइन ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन। सो हियर
I'll think I'll bring you an end to this topic. Next topic that we have to do is of the Vedic civilization. अच्छा, इसमें आई वुड ऑल्सो लाइक टू ऐड समथिंग कि इसमें हमारा एक चीज़ रह गया है, वो है इम्पॉर्टेंट साइट्स. ठीक है, इम्पॉर्टेंट साइट्स का मुझे आपको साथ में एक वो भी देना है कि यहाँ पे क्या क्या मिला है, तो दैट आई विल ऐड इन द नेक्स्ट क्लास. ठीक है, I will add the sites in the next class for Harappan civilization, and then we'll move to Vedic period. और Vedic period भी तुम्हारा early Vedic period है and you have later Vedic period, and we'll do both of them together and in a differentiating manner कि यहाँ पे हम early Vedic period, यहाँ पे हम later Vedic period लिखेंगे. ठीक है, and for this I just relied on my notes only. तो इट्स गोइंग टू बी फन ऑल्सो. ठीक है, इट्स नॉट टू मच टू रिमेंबर, बट येस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आर देयर, सो यू विल हैव टू रिमेंबर दोज. थैंक यू. सो गाइज, हियर आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट द फेमस हरप्पन साइट्स. ये वाले जो मैंने टॉपिक है, ये मैंने पूनम दहिया दयाल की एक बुक है. ठीक है, तो ये जो पूनम मैम की बुक है, ये वाली मैंने यूज़ की है. पूनम दलाल दहिया इज़ द नेम ऑफ द बुक. मैग्रॉ हिल्स की है, and I've taken the pages from there only. तो let's just do a quick revision of the sites. ठीक है, तो हरप्पा का we have it was on river Ravi. एक्सकवेटर कौन थे? दयाराम साहनी. ठीक है, यहाँ पे हमें 2 rows of 6 granaries, evidence of coffin burial and cemetery etch culture, single room barracks. ठीक है, एंड मेन तो इसमें आप ये लिखो कि भाई ठीक है, एविडेंस ऑफ डायरेक्ट ट्रेड विद मेसोपोटामिया एंड पोस्ट क्रिमेशन बरियल्स. ठीक है, इन्होंने ऑलरेडी पिंक से ऑलरेडी उसको वो करके रखा है, तो इसको और भी इजी हो जाएगा. हरप्पा में आप 6 ग्रेनरीज या 2 rows ऑफ 6 ग्रेनरीज तो याद रखो ही, एंड कॉफिन बरियल एंड सिमेट्री एच कल्चर का याद रखो. मोहनजोदारो, जिनको हम माउंड ऑफ द डेड भी कहते हैं, ये सिंध में है. ठीक है, रिवर इंदस इज एसोसिएटेड विद इट. R.D. Banerjee is the one who excavated it in 1922. यहाँ पे हमें ग्रेट बाथ, ठीक है, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल, यहाँ पे भी ग्रीनरी मिली है, बट मेन चीज़ क्या है यहाँ पे? ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल एंड ग्रेट बाथ. ठीक है, अगेन वी हैव अ सील रिप्रेजेंटिंग द मदर गॉडेस. पशुपति, बियर्डेड मैन, जो कि हमारा प्रीस्ट किंग था ना, वो भी हमें यही मोहनजोदारो से मिला है. तो बियर्डेड मैन रेफर्स टू दैट प्रीस्ट किंग, एंड वुमन टू बी सैक्रिफाइस्ड, एंड अ वुमन टू बी सैक्रिफाइस, दिस इज समथिंग न्यू. तो ये वाले पॉइंट्स, ये एंड ये ग्रेट बाथ, ठीक है, ये आपको लर्न करने पड़ेंगे. लोथाल गुजरात में है, ऐसा रावनिक की है. यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको डॉकयार्ड मिला है. ठीक है, डॉकयार्ड एंड हाउसेज विद एंट्रेंस ऑन द मेन स्ट्रीट. ठीक है, यहाँ पे हमारा एक हाउस का एंट्रेंस मिला है मेन स्ट्रीट पे. लोथाल में हमें एक एविडेंस ऐसा मिला है, क्योंकि हाउसेज ऑफ ऑल द अदर साइड्स हैड साइड एंट्रेंसेस लाइक आई टोल्ड यू. ठीक है, मतलब प्रिवेसी यहाँ पे बहुत मानते थे, तो इसलिए यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि हाउसेस बाकी सब जगह पे तो साइड एंट्री मिली है, लेकिन लोथाल में एक ऐसी जगह है जाके हाँ एक घर 2-4 घर हैं ऐसे जहाँ पे मेन स्ट्रीट पे एंट्रेंस है. ठीक है, एविडेंस ऑफ डबल बरियल मेल एंड फीमेल टुगेदर वी हैव फाउंड हियर एट लोथाल. देन वी हैव आइवरी स्केल विच वी फाउंड हियर एंड टेराकोटा मॉडल ऑफ शिप. ठीक है, फायर ऑल्टर्स भी मिला लोथाल में. तो लोथाल बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इस बार तो एक्चुअली में लोथाल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट वॉज ऑल्सो इन न्यूज़. ठीक है, we have talked about the dockyard, we have talked about the ivory scale, terracotta model of ship and fire altars and houses entrance on the main streets. कालीबंगन को हम ब्लैक बैंगल्स भी कहते हैं, एंड दे हैव बीन फाउंड इन राजस्थान. यहाँ पे हमें प्लाउड फील्ड मिला है, यहाँ पे भी फायर ऑल्टर्स मिले हैं. ठीक है, एंड यहाँ पे हमें एक चीज़ और है कालीबंगन में कि डेकोरेटिव ब्रिक्स यूज्ड इन फ्लडिंग ओनली एट दिस साइड. ठीक है, हमें कोई डेकोरेटिव ब्रिक्स मिली हैं एंड सॉरी इन फ्लोरिंग, नॉट फ्लडिंग, माई अपॉलॉजीज. डेकोरेटिव ब्रिक्स वर यूज्ड इन द फ्लोरिंग ऑन ओनली ऑन दिस साइड. ठीक है, तो डेकोरेटिव ब्रिक्स जो हैं यहाँ पे ही हमें मिली हैं. कहाँ पे? सिर्फ और सिर्फ आपकी कालीबंगन में कोई डेकोरेटिव ब्रिक्स मिली हैं जो कि सिर्फ यहीं पे मिली हैं फ्लोर्स पे. देन वी हैव चानूदारो, इंदस. ठीक है,
एंड यहाँ पे हमें कोई ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, चानुदारो इज़ द प्लेस वेयर वी हैव फाउंड नो फोर्टिफाइड स्ट्रक्चर एंड दिस इज़ द ओनली हरप्पन सिटी विदाउट अ सिटाडेल। तो आपके ये दोनों पॉइंट्स तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट हैं ही हैं, ठीक है। नो फोर्टिफाइड स्ट्रक्चर, ओनली हरप्पन सिटी विदाउट अ सिटाडेल। रंगपुर, अगेन यहाँ पे मैंने आपको राइस का एग्जाम्पल बताया था ना, लोथाल एंड रंगपुर में राइस, तो ये एक पॉइंट आप लिख सकते हो, ठीक है। ये तो राइस के लिए था, मेन चीज़ तो है वो आप ये याद रखना। बनावली वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे हमें क्ले मॉडल ऑफ फ्लो मिला है, तो ये चीज़ हमें याद करनी ही पड़ेगी, ठीक है, क्ले मॉडल ऑफ फ्लो। आलमगीरपुर, ये आपकी लेट हरप्पन कल्चर है, दैट्स इट। कोट डिजी वॉज बेसिकली सिटी डिस्ट्रॉयड बाय फोर्स इज़ व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, ये सिंध में है, ठीक है। रिवर यहाँ पे सिंध है, तो दिस इज़ व्हाट यू हैव टू रिमेंबर हियर। एंड आमरी में भी ऐसा कुछ वो याद रखने वाला तो नहीं है। देन यू हैव रोपार, रोपार इज़ इम्पॉर्टेंट हियर। रोपार में एविडेंस ऑफ बरिंग डॉग्स बिलो ह्यूमन्स, तो वी हैव डॉग्स प्लस ह्यूमन्स का बरियल्स एट रोपार, ठीक है। एक यहाँ पे सुरका टोडा में हमें मिला है बोन्स ऑफ हॉर्सेस एंड ग्रेवयार्ड, स्टिल क्वेश्चनेबल, ठीक है, कि क्या हमारी हॉर्स सेंट्रिक थी, नहीं थी। एंड देन वी हैव धोलावीरा, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट साइट, इस पे तो PYQ भी आ चुका है, ठीक है। इसमें क्या है, वाटर रिजर्वॉयर, यूनिक वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इज एन इंस्क्रिप्शन कंप्राइजिंग 10 लार्ज साइज्ड साइंस ऑफ द हरप्पन स्क्रिप्ट, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक सिमिलर टू अ साइन बोर्ड आपको इंस्क्रिप्शन मिली है ऑफ 10 लार्ज साइज्ड साइंस ऑफ द हरप्पन स्क्रिप्ट, ठीक है। इट शोज ऑल 3 phases ऑफ द हरप्पन कल्चर, यहाँ पे आपको तीनों के तीनों phases मिलते हैं। एंड देन राखीगढ़ी, नाउ राखीगढ़ी इज एक्चुअली द लार्जेस्ट, करंटली इट इज़ द लार्जेस्ट साइट ऑफ IBC, ठीक है। पहले हमारी कौन सी थी, अर्लियर इट वॉज मोहनजोदारो, ठीक है, लेकिन अभी क्या हो गई है, अभी हमारी हो चुकी है राखीगढ़ी। तो यहाँ पे हमें क्या मिला है, लार्जेस्ट इन दिस वैली सिविलाइजेशन साइट एंड टाउन इन द वर्ल्ड, ठीक है। यहाँ पे हमें इंसाइज्ड फीमेल फिगर हैज़ बीन फाउंड विद अ पोज सिमिलर टू द ब्रॉन्ज मोहनजोदारो डांसिंग गर्ल इज़ व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट साइट्स। अब हमने पूरा का पूरा अच्छे से कर लिया है IBC। इन द नेक्स्ट क्लास वील बी डूइंग Vedic period. Thank you.